سماجی رہنما اور تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے یوسف پاکستانی نے آج اپنے آفس میں ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے آج اپنا منشور پیش کیا۔ ان کا منشور ایک جھنڈا ایک ایجنڈا یوسف پاکستانی کا کہنا تھا، ہم سب کو مل کر سبز ہلالی پرچم تلے ایک ساتھ جمع ہو کر اپنے ملک و قوم کی ترقی کی راہ پر چلنا ہوگا۔ جب تک ہم ایک جھنڈے کے نیچے ایک ایجنڈے کے ساتھ جمع نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم تو کیا کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا، جب جا کر ملک پاکستان ترقی کی راہ پر چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان میں معدنیات کے ذخائر بھرے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم قدم سے قدم ملا کر چلیں گے تو کوئی بھی بیرونی طاقت ملک پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ جب دبئی جیسے صحرائی ملک ترقی کر سکتے ہیں جہاں معدنیات کا نام ہی نہیں، تو پھر پاکستان کیوں ترقی نہیں کر سکتا جو معدنیات کے ذخائر سے مالا مال ہے۔ اس موقع پر چیف گیسٹ ورلڈ جرگہ پروگرام کے مرکزی چیئرمین ریات اللہ خان اور خان بابا کنٹری ہیڈ سعدیہ خان اور خان بی بی، کراچی ڈویژن کے صدر محمد جاوید، پرائیویٹ سیکرٹری ٹو چیئرمین خان بابا، سردار بابر نیازی، جنرل سیکرٹری کراچی ڈویژن سیدہ ارم فاروق اور اس کے علاوہ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر شاہد خان نے شرکت کی۔ اس موقع پر تمام مہمانوں کا کہنا تھا کہ یوسف پاکستانی ایک سچا پاکستانی ہے جو اپنے ملک پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہا ہے۔ اس موقع پر میڈیا کے سوالوں کا جوابات دیتے ہوئے یوسف پاکستانی نے مزید کہا، جہاں بھی پاکستان کو میری ضرورت پڑی میں لبیک کہوں گا۔ اور اس موقع پر یوسف پاکستانی نے پاکستان کی خوشحالی کے لیے بکروں کا صدقہ بھی کیا۔ رپورٹ نتاشا خان، نیو آپ نیوز، کراچی۔ سب سے پہلے جس کی خوبصورت سی آواز ہے وہ ہمارے یہ آصف نواز بھائی ہیں۔ یہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں، پہلے آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں، پھر بڑے خوبصورت سے انداز سے آپ نے پڑھنا، اور آپ ادھر آگے پڑھیں گے۔ پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ آپ پہلے اس کو ہاں چلے ایسا ہاں صحیح ہے۔ تو یہ کیمروں کا رک جانا، پھر مطلب ہے کہ جیسے بھی آپ کو اچھا لگے وہ سیٹنگ میں لے لیں آپ۔ یہ سب سے پہلے جو مطلب ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کیا چاہتا ہوں کیا نہیں چاہتا۔ میں ایک عام آدمی ہوں، ان پڑھ ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہ یوسف پاکستانی کی پہچان ہے، اور یوسف پاکستانی کبھی بھی اپنی پہچان نہیں بھولتا۔ اور یوسف پاکستانی کو جو لقب بھی ملا وہ صرف ان فکروں سے ملا کہ جو کہتا ہے کہ فکر انسانیت، فکر پاکستان۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوتے ہیں، لیکن یوسف تقریباً سالوں سے جاگ رہا تھا، اور ان حالاتوں کی پیشن گوئیاں بھی کیا کرتا تھا کہ آگے حالات کیسے ہوں گے۔ اور لوگوں نے مجھے یہاں کھڑے بھی ہوں گے جو مجھے پاگل بھی کہتے تھے، وہ یہاں پر ہیں، کوئی نہ کوئی لوگ موجود ہوں گے۔ جب میں یہ کہتا تھا کہ میرے وطن کے حالات خراب ہو جائیں گے تو لوگ مجھے پاگل بھی کہتے تھے۔ جی تو چلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو اس کے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج اس پریس کانفرنس کا جو انعقاد یہاں کیا گیا ہے اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے عوام کیمرہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ مطلب یوں کہہ دیتا ہوں جی، میں یہ والا پرچہ میرے ہاتھ میں دو تاکہ یہ ریکارڈ میں آ جائے کہ یہ یوسف پاکستانی کا یہ سوچ ہے۔ اس کو آپ سوچ کہہ لیں، منشور کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ اگر غلط ہے تو اس کا ذمہ دار صرف اکیلا یوسف پاکستانی ہے، اس چیز کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ آن کیمرہ کہہ رہا ہوں۔ یہ میں خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی درپیش معاملات آتے ہیں، تو فقط اس کی ذمہ داری ان کیمروں کے سامنے یوسف پاکستانی کی، کسی اور کی نہیں ہے۔ اور اس منشور سے پوری ملک اور قوم کو فائدہ پہنچتا تو یہ پورے ملک اور قوم کا پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کے لیے الحمدللہ میں سالوں سے لگا ہوا تھا، جو میری سالوں سے ایک سوچ تھی، جو میری ایک بھاگ دوڑ تھی۔ تو میں اپنے ملک اور قوم کو یعنی یہ اس کے لیے، اس کے بعد میرا تمام دوستوں سے، صحافیوں سے پورا یعنی اس کو ہر قسم کا سوال جو اس کے دل میں آئے وہ مجھ سے کر سکتا ہے۔ باقی جو معاملات ہیں، ہمارے بزرگ رایت اللہ خان صاحب اور المعروف خان بابا، ان کی مسز سعدیہ اور المعروف خان بی بی، یہ ہمارے جوید بھائی ہیں، یہ جرگہ گروپ کے، یہ سندھ کے جو نا یہ ماشاءاللہ سے پریزیڈنٹ ہے۔ یہ ہمارے بھٹا بھائی ہیں، ناصر بھٹا صاحب، یہ لاہور سے ہیں۔
ये लाहौर से भी ये हमारे अहदेदार हैं, ये जरगा अमन पीस ग्रुप के ये, और इसके जो मकासद हैं और खुद कौमी यकजहती कौंसिल के लिए काम करना, कौमी अमन इत्तेहाद के लिए सोचना, कौमी अमन इत्तेहाद को बुरा परेशानियों से बाहर कैसे मुल्क निकलेगा इसके ऊपर सोच विचार करना, काम करना, और वो एक रूहानी तरीका, वो दुआ और सदक़ात हैं। ये लोग शायद ये ईमान वाले लोगों को पता है, ये बेईमान लोगों को या जिनके ईमान नहीं है वो इन चीज़ों को ना जान सकते हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है। ये अभी ये जो भी अल्फाज हैं इन तमाम अल्फाजों का ज़िम्मेदार मैं हूँ, और ये 25 करोड़ आवाम के लिए, ये मेरे वतन अजीज़ के लिए, ये मेरे इदारों के लिए, जिसके लिए मैं जुमला कहा करता हूँ, एक झंडा एक एजेंडा, खुशहाल आवाम, मजबूत इदारे, रोशन पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, क्योंकि ये है हम सबका पाकिस्तान, जीवे जीवे हम सबका पाकिस्तान, पुरअमन पाकिस्तान की तलाश, हल की तलाश, मुआशी इनकलाब कैसे आएगा, ये उसके अंदर कुछ चंद चीज़ें। बाकी अगर अल्लाह ने तो मदद कर रहा है, लेकिन अब दुनिया वालों की बात आती है, पाकिस्तान की कौम की बात आती है, और इसके लिए बाकी बातें इंशाल्लाह इसके बाद होंगी। फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र पाकिस्तान, आई एम मास्टर मोहम्मद यूसुफ, अंगूठा छाप, डिग्री नहीं, फ़िक्र रखता हूँ अपने मुल्क और कौम की, थ्योरी नहीं, शायद थोड़ा बहुत हुनर रखता हूँ, रोशन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान की, मुआशी इनकलाब की, अमन के इनकलाब की, ना किसी की जान जाए ना किसी का माल। ये मेरा सरफरिस्त, मेरा मंशूर का हिस्सा है, ये पढ़ा जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने जो आपका दिल करे आप सवाल करेंगे। ये ले जी, ये ज़रा खूबसूरत से अंदाज से पढ़ेंगे, और ये रिकॉर्डिंग अगर इसमें आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा यहाँ मेरी आवाज़ कैच हो जाएगी, सब आवाज़ कैच हो जाएगी साफ़ सुथरे तरीके से। हाँ नहीं, ये माशाल्लाह आवाज़ अच्छी, अंदाज भी अच्छा है, खूबसूरत से अंदाज से पढ़ना है, ताकि खुदा करे कि उतर जाए सबके दिल में मेरी बात, क्योंकि मुझे है अमन और हल की तलाश अपने मुल्क और कौम के लिए। दलदल में फंस चुके हैं, निकलना कैसे ये सोचता हूँ बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि उतर जाए कौम के दिल में मेरी बात, यूसुफ पाकिस्तानी का हर पाकिस्तानी के नाम पैगाम, क्योंकि मुझे अमन और हल की है तलाश, पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम के लिए यूसुफ पाकिस्तानी कौमी मंशूर, आओ मिलकर साथ चलें, एक झंडा एक एजेंडा, खुशहाली आवाम, मजबूत इदारे, रोशन पाकिस्तान, अंधेरों और बेरोजगारी से कैसे निकलेंगे बाहर, और ये कैसे होगा मुमकिन सब। जब तक कौम एक पेज और एक झंडे तले नहीं आएगी, कोई भी इदारे हमारी कौम और ज़ात से पार। पाकिस्तान के लिए एक कौम अशद ज़रूरत है, महाजिर, सिंधी, बलूच, सराइकी, पंजाबी, कश्मीरी, पठान, जब तक ये सब एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे तब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम यूसुफ पाकिस्तानी साहब का बहुत मशहूर है, उसकी पूरी टीम कि उन्होंने आज हमें दावत दी है। फिर मीडिया के मैं बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने क़मर की कैम निकाल के तशरीफ़ लेके आए। मैं ताल्लुक़ ज़िला शंगले से हैं, और मैं 1981 से शरीयती मोहम्मदी लोगों के साथ एक ऐसे काम करो कि हुकूमत और आवाम के दरमियान जो रोल है, आप स्वात ऑपरेशन देख ले, सारा यही बात होता है, स्वात अमन जरगा, स्वात अमन जरगा, स्वात अमन जरगा। अल्लाह की फजल करम से अब मुझे इदारों की क्या ज़रूरत है। मैं ख़ुद एक स्टेट हूँ, मैंने बॉर्डरों पे जरगे है, और आज पूरा पाकिस्तान जो आराम से नींदें कर रहा है, वो चीज़ें नहीं है कि धमाके हो रहे हैं, वो चीज़ें नहीं कि मिसिंग पर्सन है। पहले बहुत मिसिंग पर्सन होते थे क्योंकि बॉर्डर में बाढ़ नहीं था। अल्लाह की फजल करम से 2013 से लेकर 2013 से रायल शरीफ के साथ, क्या ये सिर्फ रोज़गार, मतलब कि सिर्फ एक आम आदमी का, या सिर्फ जो सनतकार है सिर्फ वो यहाँ का रोज़गार का ज़िम्मेदार है? क्या दूसरों को यहाँ पर पाकिस्तान में अमन और रोज़गार नहीं चाहिए? क्या सनतकार या सिर्फ ताजिर या मज़दूर इसका ज़िम्मेदार है? क्या बाकी लोग इंसान नहीं है? चाहे वो मीडिया छोटे से लेके बड़े तक, मीडिया तक की बात करूँगा, सियासतदान हो छोटे से लेके बड़े तक की बात करूँगा, ऑफिसर हो छोटे से लेके बड़े तक की बात करूँगा, ये सबका क्या पाकिस्तान नहीं है? ये क्या पाकिस्तान के अमन की ज़रूरत किसको नहीं है? अगर पाकिस्तान के अमन की ज़रूरत नहीं है तो वो मैं उसका मुखालफत मैं करूँगा, क्योंकि ये बात बोले कि मुझे पाकिस्तान के अमन की ज़रूरत नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला यूसुफ पाकिस्तानी उसके साथ बात करने के लिए तैयार है। अगर वो पाकिस्तान में उसको अमन की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान का खुला दुश्मन है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी नाम से हो, किसी तंजीम से हो। वो पाकिस्तान के अंदर जो अमन नहीं चाहेगा वो पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन, पाकिस्तान के अमन का दुश्मन, पाकिस्तान के इदारों का दुश्मन, पाकिस्तान की सरकार का दुश्मन, पाकिस्तान के
तमाम जो मसाइल हैं वो उसके ऊपर वो उसका ज़ाहिर है वो अमन नहीं चाहता वो, तो पाकिस्तान के अंदर जो अमन बदअमनी फैलाएगा, मैं खुला डिक्लेयर करूंगा, चाहे वो किसी रूप में हो, किसी नाम से भी हो, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो पाकिस्तान के अमन का दोस्त नहीं है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। और बाकी रही बात, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो परेशान होता है वो एक सनतकार होता है। सनतें हमारी पहले बंद हो चुकी हैं, बेरोज़गारियाँ पहले बढ़ चुकी हैं, तिजारत पहले बढ़ चुकी है, तिजारत पहले कम हो चुकी है, बेरोज़गारियाँ बढ़ चुकी हैं। और पाकिस्तान जब ये नीचे जा रहा था, मैं उस वक़्त ये बातें बोलता था जब लोग मुझे कहते थे कि यूसुफ पाकिस्तानी पागल हो गया, असल ज़रूरत ना पड़ेगा, आपकी भी आवाज़ आनी चाहिए। सर खाली उनका नहीं है कि हम लोग कुर्सियों पे बैठ गए तो हमें अमन नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास मेरे रब ने मुझे हर नेमत से नवाजा हुआ है। मैं सारे तारुफ करवा देता हूँ। 2000 रुपये उधार लेके इस कराची के अंदर काम किया था। कराची मेरी माँ है, ये पाकिस्तान की माँ है, ये कराची मेरी भी माँ है। और यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं, रब्बे काबा की कसम, ये सारे मेरे भाई हैं। मैं किसी की चापलूसी नहीं कर रहा, मैं किसी का क्यों, जो मेरे साथ बर्ताव हुआ मैं उसकी बात करूँगा। मैं इन महाजरों में रह के, मैं एक अनपढ़ आदमी था, मैं इन पढ़े लिखे लोगों में रह के आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बाशऊर इंसान हूँ। मैं यहाँ पर एक मजदूर बच्चा आया था, मैं एक गरीब बच्चा आया था, आज अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ यहीं से नवाजा है। तो मुझे कराची का अमन भी पसंद है, मुझे कराची की खुशहाली भी पसंद है। अगर जैसे मैं सबसे पहले मुझे कराची जहाँ मैं रहता हूँ, जो मेरा घर है वो मेरा पाकिस्तान है, और कराची मेरी उसकी माँ है मेरी। मैं अपनी माँ के लिए और अपने भाइयों से, मैं पाकिस्तान के तमाम लोगों से, 25 करोड़ आवाम, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, किसी मज़हब से हो, किसी कौम से हो, सिर्फ एक ही बात करूँगा, ये पाकिस्तान सबका अमन सबको चाहिए। अगर आपको अमन चाहिए, सबको चाहिए, तो एक आवाज़ पे बोलना पड़ेगा, एक आवाज़ होना पड़ेगा। हमारा रोज़गार का भी मसला है। रोज़गार अगर आप मेरे साथ चलते हो तो ये पाकिस्तान सबका है। अगर रोज़गार चलेगा, अमन चलेगा, ताजिर चलेगा, सनत चलेगी तो रोज़गार भी चलेगा, तो मज़दूर भी चलेगा, अमीर भी चलेगा, गरीब भी चलेगा। अगर सनत और ताजिर नहीं चलेगा तो फिर ना कोई इदारा चल सकता है। कितनी देर और चलाओगे? मेरा खुला चैलेंज है मेरा, आपके पास क्या हल है? किसके पास क्या हल है कि अपने इस मुल्क को, जो दलदल में आवाम फंस चुकी है, किसी के पास 2 टाइम की, किसी के पास रोटी है और किसी के पास नहीं है। यह बहुत बड़ा सच है। मैं किसी के जज्बात से ना मैं खेलता हूँ, मैं सच बात कर रहा हूँ। और मैं अरसे दराज से मैं तलाश में था कि जब मुझे कभी मौका मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क और कौम के लिए मैं आवाज़ उठाऊँगा। और इस आवाज़ को उठाने के लिए ये भी साहब आज सुन लें, ये कहानियाँ नहीं है, ये यूसुफ पाकिस्तानी के अंगूठे छाप की कहानियाँ नहीं दुनिया में नहीं रही। उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया था। अगर मैं हक और सच की बात अपने मुल्क और कौम के लिए करके मुझे कुछ होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मौत बर हक है, ये ज़िंदगी का हर किसी का सबसे बड़ा सच है। ये मौत से कौन बचेगा? आओ इंसानियत के लिए काम कर लें, अपने मुल्क और कौम के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये मुल्क हमारा, ये इदारे भी हमारे, ये फ़ौज भी हमारी। और एक अर्ज़ करूँगा मैं, कौम से फ़ौज, कौम से फ़ौज और फ़ौज से मजबूत पाकिस्तान, ये अगर है तो मजबूत पाकिस्तान है। और जो लोग मेरे इदारों के ख़िलाफ़ और जो मेरी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बात करते हैं, मैं कौम से ये कहूँगा कि ऐसे फितनों से बचो, ऐसे तमाम फितनों से बचो जो तुम्हें और तुम्हारे वतन का जो सुकून बर्बाद करते हैं। ऐसे तमाम फितनों से बचो। और इंशाल्लाह अगर किसी ने कोई बात करनी है, ये यूसुफ पाकिस्तानी, फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र पाकिस्तान, फ़िक्र रोज़गार, फ़िक्र मेरे पाकिस्तान के बच्चियों और बच्चे, जैसे मेरे बच्चियाँ बच्चे वैसे मेरी कौम के बच्चे, जो पहले सोचता था कि पहले अपने बच्चों को पाँव पे खड़ा कर, रोज़गार की तलाश सबके लिए। ये सिर्फ बातें या कहानियाँ या डायलॉग नहीं है, ये इसके पीछे हकीकत है। ये सवाल अगर किसी ने करना तो बिस्मिल्लाह, यूसुफ पाकिस्तानी हाज़िर है। आगे आप क्या सोचते हैं कौम के बारे में, कौम की नौजवान नस्ल के बारे में? कौम की नौजवान नस्ल जो, ये भी चीज़ें आपने दोबारा करनी हो तो मुझसे जिसका दिल करे इसकी फ़ोटो का भी ले जा सकता है। और अपनी मेन चीज़ें, सबका भला, सबकी खैर, पाकिस्तान क्या बाकी पाकिस्तानी नहीं है क्या यहाँ पर? जो पाकिस्तान, आवाज़ निकालो ना यार। पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज अगर है तो हमारी और तुम्हारी मजबूती है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सबका भला, सबकी खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद।